لوگ جو ہے الگ الگ القابات سے پکارتے ہیں، میں کہوں گا وہی مقدس لقب جو ہے وہ سب پر بھاری ہے۔ آپ جتنے بھی القابات لگا دیں سب کے اوپر وہی لقب بھاری ہے جسے شیخ الاسلام کہا جاتا ہے، کیونکہ جب شیخ الاسلام سید محمد مدنی اشرفی جیلانی کو کہا جائے تو دوستو اسی وقت ہمیں صدیق اکبر کی یاد آ جائے گی کہ یہ سلسلہ یہاں سے لے کے وہاں تک جڑا ہوا۔ اور دوستو حضور شیخ الاسلام والمسلمین کی وہ شخصیت حدیث قدسی کے مطابق کہ وہ دیکھتے ہیں تو میں ان کی آنکھیں ہو جاتا ہوں، یعنی آنکھیں ان کی ہوتی ہے لیکن قدرت خدا کی ایسی جاری و ساری ہو جاتی ہے کہ چھپی ہوئی باتیں بھی روشن ہو جاتی ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ میں آپ کو بالکل حقیقی واقعہ جو بالکل جس کی پوری تحقیق کے ساتھ جس کو جانچا پڑتالا اور دیکھا بھی اس کو میں آج بیان کروں تاکہ آپ کو روشن ہو جائے کہ شیخ الاسلام کی دنیا دیوانی کیوں ہے۔ حضور شیخ الاسلام والمسلمین کی بارگاہ میں سید ذوالفقار بھروچ کے رہنے والے ہیں۔ حضور شیخ الاسلام والمسلمین کے چوچا شریف کی سرزمین پر ہے۔ سید ذوالفقار یہ سنتے ہیں کہ میرے بھائی لگژری بس کے اندر بیٹھے ہوئے تھے، وہ لگژری بس بھروچ کی نرمدا چوکڑی کے قریب میں پلٹی کھا گئی، 2-3 گلاٹ، اس میں کچھ پیسنجر نکل کر کے نیچے بھی گر گئے اور ان کے بھائی اس لگژری بس کے نیچے دب چکے ہیں، مر چکے ہیں۔ یہ جب خبر سنی، یہ دونوں بھائی حضور شیخ الاسلام کے مرید یووا کانگریس کے پرمکھ ہیں جن کا واقعہ ذکر کر رہا ہوں بھروچ کی، وہ خود اپنی زبان سے عرض کرتے ہیں کہ جس وقت سید ذوالفقار نے اپنے بھائی کے لیے حضور شیخ الاسلام کی بارگاہ میں فون کر کے دعا کے لیے گزارش کی، حضور شیخ الاسلام ارشاد فرماتے ہیں بتاؤ تمہارے بھائی نے کس کلر کے کپڑے پہنے؟ حضور پیلے کلر کی ٹی شرٹ پہنی ہے میرے بھائی نے۔ حضور شیخ الاسلام ارشاد فرماتے ہیں تمہارے بھائی کا انتقال نہیں ہوا، تمہارے بھائی محفوظ ہیں، ان کے اگل بگل میں 2 بیٹھنے والے دونوں کا انتقال ہو چکا ہے۔ کیا بات ہے کیا بات ہے۔ جب لگژری بس کرین کے ذریعے اٹھائی گئی تو دوستو ان کے بھائی زندہ نکلے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کہاں کی چھوچا ہے، کہاں نرمدا چوکڑی بھروچ کے اوپر جو ہے یہ ایکسیڈنٹ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے بالکل حقیقت ہے یہ بات کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب بندے کو ایسی آنکھوں کے اندر طاقت عطا فرمائی ہے، چاہے کچھوچا میں بیٹھے لیکن بھروچ میں کیا ہو رہا ہے اس واقعے کو بھی اپنے سامنے سے دیکھ رہے ہیں۔ اتنا ہی نہیں بلکہ حضور شیخ الاسلام والمسلمین آپ ایک مرتبہ کی چھوچا شریف سے رات کو 11:15 بجے مجھے فون کرتے ہیں باپو ملک کے حالات ٹھیک نہیں ہیں، جو آپ نے ڈونیشن دینے والوں کی تختیاں جو لگا رکھی ہیں کمروں کے اوپر، جنہوں نے کمرے بنوائے ہیں وہ تختیاں آپ ہٹوا دیں، ہو سکتا ہے کہ کوئی آ کر کے آپ کو پریشان کرے۔ ہلکے انداز میں آپ نے ارشاد فرمایا، لیکن یہ انداز جو ہے وہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے مجھے حضرت کے صدقے ہی میں سمجھنے کی صلاحیت مجھے عطا فرمائی ہے۔ میں نے قبول کر کے فون ختم ہوا، اس کے بعد اٹھ کر کے کاریگر کو رات میں اٹھایا جو کام کر ہی رہا تھا، کچھ مزدور بھی ساتھ میں لیے، لے جا کر کے پھر وہ تختیاں نکالوائی، پلاسٹر کروایا، اس پر چونا بھی لگوایا، سب کچھ کر کے 4:45 بجے فارغ ہوئے۔ صبح میں 6:45 اور 7 بجے کے قریب کے اندر دہلی سے IB انسپیکٹر کی پوری ایک گاڑی آ گئی، دروازہ کھولو ہمیں یہ عمارت چیک کرنی ہے۔
क्लार्क ने फोन करके बुलवाया, मैंने जाकर के बातचीत की, ऑफिस खोला, 3 साल का ऑडिट का रिपोर्ट दीजिए, फौरन निकाल के दिया, क्योंकि 2 दिन पहले ही ऑडिट होकर के आया था। उसके बाद एक ऑफिसर जो है क्लार्क को लेकर के चलो पूरी सारी इमारत दिखाया, देख करके वापस आया और कहने लगा एवरीथिंग इज ओके। ये कह करके मुसाफा करके बोले चलो हम जाते हैं। अब सोचे तो सही, उस वक्त ये तख्तियां लगी होती तो आजकल जो है रिश्वतखोर, भ्रष्टाचारी अधिकारी क्या क्या नहीं करते, किस कदर परेशान करते। लेकिन हुजूर शेखुल इस्लाम वल मुस्लिमीन जिस इदारे की सरपरस्ती फरमा दे, जिस मुरीद को अपना मुरीद कह दे, दामन में आने वाले को किसी भी सूरत में परेशान होता हुआ कभी बर्दाश्त नहीं कर सकते। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जो इस दुनिया के अंदर परेशान होता हुआ न देख सके, मेरा यकीन है, मेरा विजदान है, मुझे पूरा भरोसा है इंशाअल्लाह ताला न कब्र में हमको परेशान होते हुए देखेंगे। सुभान अल्लाह, क्या बात है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। या रसूलल्लाह, फैज़ान हुजूर शेखुल इस्लाम जिंदाबाद। पीर हमारे नूर वाले, पीर हमारे नूर वाले, नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे रिसालत, या रसूलल्लाह। वो जो बोलते हैं मैं उनकी जुबान हो जाता हूं, वो जो बोलते हैं मैं उनकी जुबान हो जाता हूं। 11 साइंस की मंजूरी ली, हमारे इदारे की मंजूरी लेने के लिए अप्लाई हुए, हियरिंग हुआ, हम फेल हो गए, रिजेक्ट कर दिया, अपील में गए, अब अपील की सुनवाई गांधीनगर हुजूर शेखुल इस्लाम वल मुस्लिमीन की बारगाह में सिर्फ 20 किलोमीटर गांधीनगर दूर था और मैंने फोन किया, हजरत हियरिंग है और इस तरह एक मर्तबा तो रद्द कर दिया गया है, आप दुआ फरमाएं कि मंजूरी मिल जाए। हुजूर शेखुल इस्लाम क्या इरशाद फरमाते हैं, बापू कौन सा काम रुका है कि ये काम रुक जाएगा? इतना ही जुमला, कौन सा काम रुका है कि ये काम रुक जाएगा? बस पूरे जोश खरोश के साथ, पूरी अकीदत के साथ पहुंचा। वहां गया तो अजब मंजर, क्या मंजर कि वो पार्लियामेंट के अंदर कुछ धमाल करने वाले लोग घुस गए थे, पूरा गांधीनगर गांडा हुआ था, सबको बुला लिया गया था, बड़े बड़े ऑफिसरों को। जिस ऑफिसर ने रिजेक्ट किया, उसी ऑफिसर को उसके बड़े ऑफिसर ने, जिसके साथ सुनवाई थी, सचिव जो था, उस सचिव को हमारी फाइल देखना था, लेकिन सीएम के बुलाने पर सारे लोग चले गए थे। वो बड़े सचिव ने उसी अधिकारी को सुपुर्द किया जिसने रिजेक्ट किया था। सुभान अल्लाह, सुभान जैसे ही मैं हाजिर करजन थी आया चो, हाँ लाओ फाइल, इधर से उधर पलटाया, उधर से उधर पलटाया, कहा कि ऑर्डर लेके जाओ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या कभी दुनिया में ऐसा देखा है आपने कि जिसने खुद ने रिजेक्ट किया वो खुद ही पास कर दे? ये वो जुबान है, ये वो जुबान है जिसकी जबान के ऊपर खुदा की कुदरत के जलवे नजर आते हैं। हुजूर शेखुल इस्लाम वल मुस्लिमीन की आंखों के अंदर खुदा ने क्या कुव्वत दी है। ये सारे जो है तजर्बे में अपने ही कहूंगा कि फला रावी ढिमाका रावी नहीं, मैं खुद ही रावी। और पूरी रात अगर बयान करना चाहूं, पूरी रात, क्योंकि मैंने अल्हम्दुलिल्लाह होश संभालने के बाद मेरे वालिद बुजुर्गवार के साथ भी और बाद में उनके विसाल के बाद हुजूर शेखुल इस्लाम के साथ अफ्रीका के कई ममालिक और इंग्लैंड के भी कई दौरे मैंने साथ में किए हैं और इंडिया के अंदर भी कई जगह पे घुमा हूं। आपके छोटा उदयपुर भी हजरत के साथ में आया। ये गुलामी का सफ़र मुझे हासिल है, मुझे फख्र है इस बात का कि अल्लाह ताला ने मुझे ये नेमत उज़्मा से मुझे नवाजा है।
हुजूर शेखुल इस्लाम वल मुस्लिमीन, आप अहमदाबाद की सरजमी पर है, मैंने किसी को बताया नहीं। स्कूल के अंदर जरूरत समझी, मदरसों की भी जरूरत को समझी, और ये जरूरत को समझने के बाद मैंने एक कायदा, मदनी कायदा मैंने तरतीब दिया कि भाई ये जो है 5-5 साल तक जो है हमारे बच्चे सिर्फ नाजरा पढ़ते रहे, ये कहां का वसूल। वही बच्चे हमारे यहाँ 3 साल के अंदर दाखिल होते हैं और वो ABCD बोलने लग जाते हैं, लिखने लग जाते हैं, और 5 साल में कहां से कहां पहुंच जाते हैं दुनियावी तालीम में। तो दीन की तालीम में आगे जो है तरक्की क्यों नहीं करते। एक सलीस और आसान अंदाज के अंदर 6 सबक के ऊपर मैंने कायदा तैयार किया। इंग्लैंड की सरजमी पर वक्त था, लोगों का इसरार था, कायम कर दिया। आने के बाद मैंने सोचा कि चलो ये कायदा जो है अपने प्रेस ही के अंदर छापा जाए। प्रेस लाए गए, बापू प्रेस आ गया, मगरिब के पहले पहले कमरे में रख दिया। तकरीबन 3,70,000 रुपए की कीमत का प्रेस आ गया। हम बड़े खुश कि चलो अब दीन का काम होगा, प्रेस आ चुका है। पूरा लेमिनेट किया हुआ पूरा प्रेस जो है कमरे के अंदर मौजूद। भरूच की सरजमी के ऊपर आज भी उस्मान भाई भट्टी मौजूद है, उनके दामाद जो है यूनुस भट्टी, वो भी मौजूद है। आप अभी भी जाके पूछ सकते हैं, दोनों के फोन नंबर भी मेरे पास है, मैं बता सकता हूं। दोस्तों, मगरिब से पहले पहले आए और आने के बाद कहने लगे, बापू इधर से गुजरे तो हम चाहे कि चलो बापू से मुलाकात कर लेते। मैंने कहा अच्छा हुआ यूनुस तुम आए, क्योंकि तुम प्रेस का काम जानते हो, हम प्रेस लाए हैं, कभी जरूरत पेश आई तो तुम आना और मदद करना। उसने कहा बहुत अच्छा, कहां रखा है? कमरे में रखा है। कमरे में लाइट नहीं थी, लेमिनेशन किया हुआ था। दूर से देख के बोले चलो दीन में किसी वक्त आ जाऊंगा, वो देख लूंगा। मगरिब के बाद दोनों जाते हैं, भरूच में जाकर के सो जाते हैं। यूनुस कहने लगा जिंदगी में पहली मर्तबा मुझे करीब करीब 3-3:15 बजे ख्वाब आया। ख्वाब में हुजूर शेखुल इस्लाम इरशाद फरमाते, उठ खड़ा हो, जाके करजन जाकर भरूच में शौकत अली बापू को कह दे कि ये प्रेस देने वाले ने धोखा किया है, धोखा किया है, और पुराना मशीन जो है वो लेमिनेट करके उसने दे दिया है। बापू से कहो कि उसे वापस कर दे। उसने तो कभी जिंदगी में शेखुल इस्लाम को ख्वाब में देखा ही नहीं था। बैठा हो, और बैठा होने के बाद घड़ी में देखा 3-3:15 बजे। उसके मामू को उठाता है कि उस्मान मामा उठिए और चलिए करजन। वो भी नींद से उठे, बोलने लगे कल रात में तो हम आए हैं, और क्या तुम पागल हो गए हो कि 3 बजे कह रहे हो कि चलो करजन? बोले हुजूर शेखुल इस्लाम का हुक्म है, मुझे ख्वाब में ये कहा कि जाकर कह दे। बोले चलो ठीक, जाते हैं। थोड़ा इधर उधर टाइम पास किया कि भी इतनी रात में जाएंगे तो बापू भी देख करके चौंक जाएंगे कि क्या हुआ कि ये लोग इतनी जल्दी सवेरे लोग आ गए। फजर की नमाज के बाद ये करजन पहुंचने, और पहुंचने के बाद कहा कि बापू ऐसा ख्वाब यूनुस ने देखा है। मैंने कहा तुमने देखा? और सही मानों में यही हजरत ने फरमाया? कि हाँ। ठीक है, खोल दारों से सारा लेमिनेशन काट पीट करके जो है अलग कर दिया, प्लास्टिक हटा दिया। वो देखने के बाद चीख के कहने लगा ये तो वही मशीन है जिस पर मैं अंकलेश्वर के अंदर मैंने काम किया है, ये वही मशीन है। देखो तो सही, हो सकता ऐसा भी हो सकता था ना कि पुराना मशीन था तो किसी और को ख्वाब दे देते, लेकिन ख्वाब भी उसी को दिया कि जो ये मशीन चला रहा था। उस्मान भाई कहने लगे कि देख यूनुस, जल्दबाजी मत कर, आंखों का देखा हुआ भी गलत होता है। अरे मामा क्या बात कर रहे, देखो ये छुपा हुआ, ये बंद एरिया है, मैं अभी इसको खोलता हूं। उसके अंदर एक राड जो है टूटा हुआ था, वेल्डिंग करके मैंने खुद ने लगाया है। उसने धड़ से खोला, देखा वाकई वेल्डिंग किया हुआ था।
दूसरा ये मोटर के ऊपर स्टार्टर लगा हुआ नया मैंने लगाया, फला मैंने ये काम किया, फला 7 चीजें बताई, और फिर भी आपको यकीन नहीं, ये मालिक जो प्रेस का है वो मेरा दोस्त है, अभी बुलाता। उसने कहा तात्कालिक आ भाई, जरूरत। बुलाया गया और बुलाने के बाद हाँ मैंने खुद ने 70,000 रुपये के अंदर बेचा है, 3,70,000 हमसे लिया और 70,000 उसको दे करके मशीन हमको दे रहा है। दोस्तों पोल सारी खुल गई और जब लॉन्च करने के लिए वो 11-12 बजे आया तो हमने उसको पकड़ा कि भाई ये धोखेबाजी तूने की है। उसने कहा नहीं नया हमने दिया है, यहाँ मशीन चलाने वाला भी मौजूद है और मशीन देने वाला भी मौजूद है, तूने 70,000 रुपये के अंदर तूने दिया है। देख करके फिर वो जो है टाई फीस हो गया और उसके बाद माफी मांगी और उसने फिर बाद में जो है चेक लिख कर कहा कि मैं दूसरा मशीन आपको देता हूं। दूसरा मशीन भी लाया, लेकिन हमारे दिल ने गवारा न किया कि सारा पूरा का पूरा पैसा दे करके दोनों मशीन ले जाओ, हमको जरूरत नहीं। जरा सोचें इस बात के ऊपर कि अल्लाह जल्ले शानहू ने इरशाद फरमाया कि वो बंदे जो देखते हैं मैं उनकी आंखें हो जाता हूं। हुजूर शेखुल इस्लाम से तो हमने कहा भी नहीं कि हम मशीन लाने वाले हैं, और यहां पर धोखा हो रहा है। हुजूर शेखुल इस्लाम देख रहे हैं, इतना ही नहीं बल्कि उस चलाने वाले को ख्वाब दे करके मुतनब्बे कर रहे हैं, जाओ भी जा करके कह दो ये धोखा हुआ। सुभान अल्लाह, क्या बात। दोस्तों हुजूर शेखुल इस्लाम वल मुस्लिमीन की क्या शख्सियत है, मैं आपको बताऊं मर्तबे के लिहाज से कि 97 के अंदर हुजूर शेखुल इस्लाम वल मुस्लिमीन के साथ हज में जाना मुझे नसीब हुआ। वहां से इराक ज़ियारतों के लिए भी गया। रात में 11:15 बजे जब बगदाद शरीफ के अंदर हम क़याम करते हैं, किसी को इत्तला नहीं कि हम पहुंच रहे, पूरा कोच पहुंचा, पूरा काफिला था। सुबह में हुजूर शेखुल इस्लाम ने फरमाया कि सुबह में जल्दी उठ जाना, नमाज के बाद रेडी रहना, हम सबसे पहली हाजिरी गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की बारगाह में देंगे। सारे के सारे हुज्जाज जो थे काफिले वाले तैयार हो गए। जब गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की बारगाह में हाजिरी देने के लिए पहुंचे तो आगे आगे मैं चला, देखा कि बड़ा हुजूम है, पूरा गेट जो है, बुलंद दरवाजा जो है पूरा भीड़ भाड़ से पैक है। मेरे दिल में ख्याल आया कि हुजूर जो है वो कैसे तशरीफ ले जाएंगे, चलो मैं आगे चल के रास्ता करूं। जैसे ही गेट के अंदर मैं दाखिल हुआ, एक कड़ियल नौजवान बहुत ही खूबसूरत अरबी लिबास के अंदर हाजिर हुआ और कहने लगा, ऐन सैयद मोहम्मद मदनी अशरफ जिलानी। मैं सुन करके बहुत ताज्जुब करने लगा। मैं हाजिर, पीछे पलट करके मैंने कहा वल्लाह, मैंने कहा वल्लाह। हुजूर शेखुल इस्लाम का हाथ पकड़ा और बड़ी तेजी के साथ कहा कि काफिले वालों को भी सबको साथ में ले लो। गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला उनके गद्दी नशीन इंतजार कर रहे हैं। दोस्तों सारे दरवाजे बंद थे, पीछे वाला दरवाजा खुला था। घुमा करके वो जो भी शख्स था वो ले गया। ले जाने के बाद गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला की गद्दी नशीन को जब हमने देखा तो आस्ताने अक़दस बंद है और गौसे पाक की गद्दी नशीन हाथ बांधे हुए इस तरह खड़े हुए। हुजूर शेखुल इस्लाम जब तशरीफ ले गए तो दोनों बगल गिर हुए और दोनों को एक दूसरे को दुआओं से नवाजा, और नवाजने के बाद फिर अपनी शेरवानी से गद्दी नशीन ने जो है चाबी निकाली और चाबी निकालने के बाद आस्ताने गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला ने खोला और खोलने के बाद आस्ताने अक़दस के अंदर जैसे दाखिल होते हैं तो सज्जादा नशीन जो है थोड़ी थोड़ी उर्दू भी बोलते थे। आपने इरशाद फरमाया कि जितने भी शरीफ हैं, यानी वहां पे शरीफ सैयद को कहते हैं, जितने भी शरीफ हैं वो सबको भी अंदर दाखिल कर लीजिए। 7 सादाते किराम थे, नाचीज भी उसके अंदर मौजूद था, सबको अंदर ले लिया गया। और अंदर ले जाने के बाद पुराने गिलाफ को उतारा गया, सरों पर रखा गया और दूसरे नए गिलाफ चढ़ाए गए। और उसके बाद गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला की गद्दी नशीन ने सबके लिए दुआ फरमाई।
ठीक ये माइक है, इसी तरह सामने जो है आपका आस्ताना अक़दस है, आपका मज़ार मुक़द्दस है, और यहाँ खड़े होकर के गद्दी नशीन जो है दुआ फरमा रहे हैं। आपकी मुकम्मल पूरी दुआ खत्म होती है। उसके बाद मैंने अर्ज किया, हुजूर मैं ये सैयद मोहम्मद मदनी अशरफी जीलानी उनका मैं गुलाम हूं, मुरीद हूं। मैं ये चाहता हूं कि आप उनकी उम्र दराजी के लिए और उनकी सेहत के लिए आप दुआ फरमाएं। आपने फिर दोबारा दुआ फरमाई। फिर अर्ज किया, हुजूर उन्हीं के नाम से मंसूब उनके हुक्म से मैंने अपनी बस्ती के अंदर एक इदारा कायम किया है, मदनी इस्लामिक स्टडी सेंटर, आप उसके लिए भी दुआ फरमाएं। आपने उसके लिए भी आपने दुआ फरमाई। फिर बाद में अपने घर ले जाकर के गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जो मोहर का इस्तेमाल करते थे, वो कागज के ऊपर अलग अलग टुकड़ों के ऊपर जो है मोहर लगा लगा करके शेखुल इस्लाम के सदके में हम तमाम गुलामों को अता करवाई। और आपने छोटा कप जो है कावा पीते हैं काली चाय जैसा, वो सबको पिलाया है। ये हुजूर शेखुल इस्लाम का सदका है कि दोस्तों हुजूर शेखुल इस्लाम के सदके हमको ये चीज मुयस्सर हुई। वहां से चले हजरत इमाम यूसुफ रज़ी अल्लाह ताला, उनकी बारगाह में बड़ी भीड़ थी। रोड से थोड़ा सा नीचे चल करके, यानी ढाल जो होता है ऐसा हिस्सा था, बड़ी भीड़। और उस भीड़ के अंदर हम दाखिल हुए। आस्ताने अक़दस से गद्दी नशीन बड़ी तेजी के साथ ऐसे हटाते हटाते आए और हुजूर शेखुल इस्लाम का हाथ पकड़ लिया। और पकड़ने के बाद हजरत इमाम यूसुफ की बारगाह में दरवाजे पे खड़े होकर के इरशाद फरमाते हैं, आप मेरे लिए दुआ करें। दोस्तों शेखुल इस्लाम की तारीफ में कोई करामत बयान करेगा, लेकिन जो नजरों में देखा है मैं वो बयान करता हूं। क्या फरमाते हैं कि आप मेरे लिए दुआ फरमाएं। और इतना ही नहीं, अपना जो अबा जो था वो अबा शेखुल इस्लाम को पहना दिया, और पहनाने के बाद फिर मुझे कहा, पढ़ो या नबी सलाम अलैका। तो मैंने या नबी का सलाम मैंने पढ़ा, और पढ़ने के बाद फिर हुजूर शेखुल इस्लाम से फिर दोबारा उन्होंने दुआ करवाई। आंख वाला ही समझ सकता है कि दोस्त हुजूर शेखुल इस्लाम क्या है। आप दूसरों के ताल्लुक से आप भूल जाएं, लेकिन मैं उस मंजर को भी आज अभी याद आ गई, बात तो अर्ज कर दूं। पढ़ने का जमाना था, बकरीद का दिन था। हुजूर सरकार कलाम शेखुल मशाइख सैयद मुख्तार अशरफी जीलानी जानशीन हुजूर मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी रहमतुल्लाह अलैह के पीछे नमाज पढ़ी। और नमाज पढ़ने के बाद जब आपकी कयामगाह जहां थी, उस कयामगाह के बाहर दालान में कुर्सियां लगी हुई थी। सरकार कला हुजूर इस कदर इस तरह कुर्सी पे जलवा फरोज है, सामने टेबल लगा हुआ है, दूसरी कुर्सियां चारों तरफ लगी हुई हैं। आने वाले ईद की मुबारकबादी के लिए हजरत सैयद मुजफ्फर हुसैन साहब एमपी आपसे उम्र में बड़े हैं, लेकिन वो भी आए, बैठे ही बैठे, क्योंकि आप सज्जादा नशीन हैं। आपको मैंने देखा कि आपने बैठे बैठे मुसाफा फरमाया और कहा तशरीफ रखें। सैयद मुसन्ना मियां आए, उनसे कहा तशरीफ रखें। कुतुब अशरफ तशरीफ लाए, तशरीफ रखें। सब जितने भी आए सबको एक एक बाद इधर बैठालते चले गए। लेकिन जब बाद में हुजूर शेखुल इस्लाम वल मुस्लिमीन की तशरीफ आवरी हुई, मेरी निगाहों ने क्या देखा, खुदा को हाजिर नाजिर समझ करके कहता हूं कि उस वक्त जो है हुजूर शेखुल इस्लाम की तशरीफ आवरी पर हुजूर सरकार कला खुद खड़े हो गए। और खड़े होकर के आप मुसाफा करते हैं, हाथ नहीं छोड़ते, ऐसे ही घुमा करके कहते हैं आप तशरीफ रखें। बगल में आपको बैठाना। पीर ही बेहतर जाने के मुरीद का मर्तबा क्या है। एक बात और भी अर्ज कर दूं। क्या बात है? जंगार की सरजमी पर वो मंजर देखने वाले और सुनने वाले आज भी मौजूद है। भरूच जिले के अंदर पाले से करीब में जंगार, उन्होंने अपनी जुबान से वाकया बयान किया।
کہ سرکار کلام حضور کے ساتھ حرم شریف کے اندر بیٹھنے کا، ان کی محفل میں حاضری دینے کا شرف حاصل ہوا۔ دوران گفتگو سلسلے کے بزرگوں کی باتیں ہوئی، اور جب حضور شیخ الاسلام والمسلمین کی بات آئی تو اس وقت برجستہ حضور شیخ المشائخ سید محمد مختار اشرف اشرفی جیلانی یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ کل محشر میدان میں خدا نے پوچھا کہ مختار کیا لائے ہو، تو میں یہی کہوں گا مدنی لایا ہوں۔ پیر کو مرید کے اوپر کس قدر ناز ہے، کس قدر ناز ہے۔ آپ کے صاحبزادے سید احمد اشرف وصال فرما گئے، وہ آپ اکثر یہ ارشاد فرماتے تھے کہ بھائی ابا نے کہا، آپ کا ایک طریقہ تھا بولنے کا، ابا نے کہا کہ میرے بعد اگر کوئی ہے تو مدنی ہے۔ کیا فرماتے؟ میرے بعد اگر کوئی ہے تو مدنی ہے۔ آپ فرماتے اگر مرید ہونا چاہتے ہو تو مدنی میاں سے ہو جاؤ۔ یہ احمد اشرف کا قول تھا۔ حضور شیخ الاسلام والمسلمین کی شخصیت کو ہم اور آپ کیا سمجھیں گے؟ ایک امریکہ کی خاتون نے حضور شیخ الاسلام والمسلمین کو سمجھا۔ دوستو کیا سمجھا؟ اللہ تعالیٰ جب لوگوں کو توفیق دیتا ہے تو کس قدر اپنے بندوں کے ذریعے توفیق دے دیتا ہے۔ واقعہ سننے سے دوستو ایمان تازہ ہو جاتا ہے۔ حنیف بھائی کانٹریکٹر، وہ کانونگا فیملی سے، آپ انکلیشور کے رہنے والے، وہ خود بیان کرتے ہیں کہ جب تقریر کے پروگرام کے لیے جب ہم قیام گاہ سے حضور شیخ الاسلام کو ہال کی طرف لے کر کے جانے لگے، تھوڑی سی دیر ہو گئی تھی، اس لیے گاڑی بڑی تیز جا رہی تھی۔ ایک ٹرننگ تھا، ٹرننگ کے قریب سے گزرے تو ایک عورت یورپین وہ کھڑی ہوئی ہے، گاڑی سائیڈ پہ ہے اور اشارہ کر رہی ہے، مدد مانگ رہی ہے۔ حضرت کی نگاہ پڑی لیکن گاڑی بڑی تیز تھی، تھوڑی آگے بڑھ گئی۔ حضرت نے فرمایا یہ خاتون کیا چاہتی تھی؟ لوگوں نے کہا حضرت شاید یہ کوئی مدد چاہتی تھی۔ بولے ٹھیک ہے، واپس پلٹاؤ، گاڑی کو پیچھے لے جاؤ اور پوچھو اس کو کیا مدد چاہیے۔ دوستو عطائے رسول نے اپنے اخلاق کی بنیاد پر اسلام کو ایسا پھیلایا کہ 96 لاکھ مسلمان ہو گئے۔ اب یہ عطائے رسول تھے، یہ حضور شیخ الاسلام عطائے خواجہ ہیں، عطائے خواجہ ہیں، اور اس کا بھی پروف دوں گا، باتیں ہوا میں نہیں کروں گا۔ سننا چاہتے ہیں کہ نہیں؟ آپ عطائے خواجہ ہیں۔ دوستو حضور شیخ الاسلام والمسلمین نے بھی وہی اخلاق جو ہے جو شریعت محمدی کے ہیں، جو تعلیم و تربیت ہے آپ نے پیش فرمائی، واپس لے چلو۔ واپس لے گئے اور ان لوگوں نے انگریزی میں پوچھا، بولے میری گاڑی خراب ہو گئی، میں چاہتی ہوں کہ یہاں پہ سروس اسٹیشن ہے، وہاں تک اگر مجھے بیٹھا لیں تو میں وہاں سے کاریگر کو لے کر کے آؤں اور میری گاڑی کو لے کر کے درست کروا لوں، بس اتنی مدد کی ضرورت ہے۔ خیر تھوڑی سی جگہ کروائی حضرت نے اور اس خاتون کو بٹھالوا دیا۔ جب چلنے لگے تو وہ خاتون نے سوال کیا پیچھے والوں سے کہ آپ گئے اور پھر واپس کیوں آئے؟ واپس کیسے آئے؟ دیکھو توفیق کیسے ملتی ہے، آپ گئے تو واپس کیسے آئے؟ بولے یہ انڈیا سے ہمارے دھرم گرو آئے ہوئے ہیں، انہوں نے جب آپ کو دیکھا تو ہم سے پوچھا اور کہا کہ جب اس کو مدد کی ضرورت ہے تم واپس چلو۔ بولے اچھا انڈیا سے آئے ہیں، آپ کے دھرم گرو ہیں، تو آپ ان کے کہنے سے آئے، ابھی آپ کہاں جا رہے ہیں؟ بولے فلاں ہال کے اندر ان کا پروگرام ہے، پروچن ہے، لیکچر ہے۔ اچھا پتہ ذرا لکھوا دو۔ پتہ لکھوا دیا۔ خاتون تو سروس اسٹیشن کے اوپر رک گئی، حضور شیخ الاسلام ہال میں پہنچ گئے۔ حضور شیخ الاسلام کا بیان جاری و ساری ہے۔ اس منظر میں اس نے کیا دیکھا وہی بتا سکتی ہے۔ پینے والے نے کیا پیا، پلانے والے نے کیا پلایا، اللہ ہی بہتر جانے۔ لیکن جب